ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗਣਿਤ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ 11ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 11.1 ਪਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਤੇ ਲੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਲੇਸ ਕਿੰਨੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਪਦੇ ਹੋ ਸੂਟ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਦੀ ਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਸ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਉੱਤੇ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਆਇਰ, ठीक है। जे मैं कहा रैक्टेंगल दा तां ਉਹ ਵੀ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 a ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਕਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਐਂਡ ਅ ਸਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਲੈਂਥ ਲੰਬਾਈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਚੌੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ABCD, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ L, ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੈ L ਯੂਨਿਟਸ, B ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ AB ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ BC, ਫਿਰ ਐਡ ਕੀਤਾ CD ਤੇ ਫਿਰ ਐਡ ਕੀਤਾ DA। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ A ਵਾਲਾ L ਪਲੱਸ ਫਿਰ A ਵਾਲਾ B ਫਿਰ L ਤੇ ਫਿਰ B। 2 ਵਾਰ L ਹੋ ਗਏ 2L ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਵਾਰ B ਹੋ ਗਏ 2B ਕਰਦਾ। ਦੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ L ਪਲੱਸ B। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਵਾਪਸ 2L ਪਲੱਸ 2B। ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ? ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸਕੁਆਇਰ ਯੂਨਿਟਸ। ਸਕੁਆਇਰ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਬ੍ਰੈਡਥ ਸਕੁਆਇਰ ਯੂਨਿਟ। ਯੂਨਿਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢੋ, ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ? ਲੈਂਥ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ, ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यही होएगा पैरीमीटर। यानी A प्लस A प्लस A प्लस A 4 बार A हो गया, या तुसी कह सकते हो 4 बार A दी थां ते 4S 4 बार जिहड़ी साइड हैगी उहनूं मल्टीप्लाई कर दो, उन्ने यूनिट्स दे विच मीटर सेंटीमीटर दे विच तुहाडा पैरीमीटर आ जाऊगा। जे आपां एरिया कढना है, एरिया की हो जाऊगा A साइड मल्टीप्लाइड बाय A साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड हुंदा है, यानी 2 बार साइड ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਕੁਆਇਰ ਯੂਨਿਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 4 ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ 2 ਟਾਈਮਸ ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਬ੍ਰੈਡਥ,
ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, है ना। उवें ही जे मैं कहा भी अपना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की है 4 बार साइड नू मल्टीप्लाई करना है या 4 टाइम्स साइड 4 एस यूनिट्स एरिया ए स्क्वायर यानी साइड दा स्क्वायर। हुण इत्थे सानू दस्सिया होया पेरीमीटर कढना है, एरिया कढना है रैक्टेंगल दा जिहदी लेंथ दित्ती हुई है इन्ने सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दित्ती हुई है इन्ने सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन दे विच जे तुसीं नंबर अपने खटने ने तां चैक करना बहुत जरूरी है भी यूनिट दोनों दे सेम हैगे ने, सेंटीमीटर ते सेंटीमीटर हैगा। हुण आपां लिखिया लेंथ कितनी दित्ती हुई है इन्नी, ब्रेड्थ दित्ती हुई है आह, पेरीमीटर की हो गया 2 बार, फॉर्मूला लिखना जरूरी है लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स लेंथ कितनी है 18 प्लस ब्रेड्थ कितनी होगी 9, ऐड किया 27 आ गया, दोनों नू मल्टीप्लाई किया 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये आ गया जी 54। उवें ही जे आपां एरिया कढना है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ हुंदा है पर यूनिट दे विच सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, याद रखियो जे ये नहीं लिखिया यूनिट तां तुहाडे नंबर कट जाणगे। उवें ही पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर जिहदी साइड दित्ती हुई है, पेरीमीटर दा की फॉर्मूला स्क्वायर दा 4 टाइम्स साइड 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 वो सेंटीमीटर दे विच आ गया। एरिया की फॉर्मूला की है स्क्वायर दा वो हैगा साइड दा स्क्वायर यानी 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 उन्ने सेंटीमीटर स्क्वायर दे विच आंसर आ गया। हुण इत्थे किया गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इन्ना, एरिया दिता होया ठीक है रेक्टेंगुलर पार्क दा, लेंथ दिती हुई है, ब्रेड्थ ते पेरीमीटर काढना है। सानू पता है एरिया दा की फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, क्योंकि इत्थे दस्सिया होया भी रेक्टेंगल है, सानू की दिता होया एरिया दिता होया, लेंथ दिती हुई है। ब्रेड्थ किवें कढांगे एरिया बटा लेंथ, एरिया कितना है 1386 डिवाइडेड बाय 42, इनू डिवाइड करोगे 33 मीटर आ जाऊगा, ये तो आ गई जी ब्रेड्थ। उस तो बाद उन्होंने कहा पेरीमीटर कढो, लेंथ हैगी है तुहाडे कोल, ब्रेड्थ हैगी है, फॉर्मूले विच पा दोगे तो पेरीमीटर आ जाऊगा। उवें ही द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, पहले इत्थे बना लो स्क्वायर पार्क का जिहड़ा एरिया है इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी स्क्वायर का जिहड़ा एरिया है वो बराबर हैगा रेक्टेंगल दे एरिया दे, यही कहा गया ना। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क यानी इहदी जिहड़ी साइड हैगी 36 मीटर हैगी है ते लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इहदी जिहड़ी लेंथ है तां मैं ड्रॉ कर लैंदी हां, ये हैगी है 54 मीटर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इहदी ये ब्रेड्थ जिहड़ी है वो कढनी है। देखो सिंपल तरीका की है, दोनों का एरिया बराबर है, आपां पहला स्क्वायर का एरिया कढ लईए, वो की हुंदा फॉर्मूला साइड का स्क्वायर, ये आ गया। हुण सानू इत्थे रेक्टेंगल दे विच लेंथ दित्ती हुई है, एरिया किहड़ा होएगा रेक्टेंगल का जिन्ना स्क्वायर का एरिया उन्ना ही होएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, ठीक है। यानी आपां कह सकते हैं 54 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ वो कितना हो जाएगा जिन्ना स्क्वायर का एरिया कढिया आ गया। ब्रेड्थ किवें कढांगे एरिया डिवाइडेड बाय साडे कोल जिहड़ी अपनी लेंथ हैगी है, ठीक है। ब्रेड्थ आ गई, ब्रेड्थ ही कढन लई कहा सी आपां कढती। अगे ट्राई करते हैं। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 15 मीटर, एक वायर हैगी है इदां करके स्क्वायर दी शेप दी जिहदी एक साइड हैगी है 15 सेंटीमीटर। If the wire is rebent into a rectangle of length 16 centimeter, इसी वायर नू चेंज करके रेक्टेंगल विच बदल दिता ते ओदी जिहड़ी लंबाई हैगी है वो हैगी है 16 सेंटीमीटर। आपां इहदी ब्रेड्थ कढनी है, which encloses more area, स्क्वायर और रेक्टेंगल ते किहदा एरिया ज्यादा है स्क्वायर दा ते रेक्टेंगल दा, और ब्रेड्थ कढन तो बाद पता लग जाऊगा। देखो जिहड़ी वायर है कि मैं इहनू लेस समझ सकदी हां भी जिन्नी लेस इस स्क्वायर ते लगी उन्नी ही लेस इस रेक्टेंगल ते लगनी, यानी दोनों का जिहड़ा पेरीमीटर जिहड़ा है वो बराबर होएगा, है ना। एरिया नहीं पेरीमीटर, क्योंकि जिहड़ी ये वायर हैगी ये लेस का काम कर रही है जिहड़ी आपां सूटां ते लांदे हैं। पहला आपां पेरीमीटर कढ लैंदे हैं स्क्वायर का, वो हो गया 4 टाइम्स साइड 4 मल्टीप्लाइड बाय एस, 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 60 सेंटीमीटर। उस तो बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किवें कढांगे, फॉर्मूला की है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, साडे कोल तां सिर्फ लेंथ हैगी पर मैनू पता है भी ये जिहड़ा पेरीमीटर है बराबर होएगा स्क्वायर दे पेरीमीटर दे, ठीक है। इक्वेशन की बन गई, जे इदां बनाया तो सॉल्व करना सौखा हो गया।
60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 लेंथ है प्लस ब्रेथ। हुणे मल्टीप्लाई हो रहा इत्थे, पहला इनू डिवाइड ते लै जाओ, यानी 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 प्लस ब्रेथ है ना। इनू डिवाइड किया 30 आ गया, फिर उस तो बाद 16 नू आपां इधर लैके जा सकते हैं, 30 माइनस 16 ब्रेथ आ गई। हुण इन्हां ने ये भी पूछा सी भी किहदा एरिया ज़्यादा है, पूछा होया ना विच एनक्लोजेस मोर एरिया, ते आपां एरिया कढ लांगे स्क्वायर दा भी ते आपां रैक्टेंगल दा भी एरिया कढ लांगे, पिछे सेंटीमीटर स्क्वायर लाना है ते फिर दस दांगे किहदा एरिया ज़्यादा है। सानू दिख रहा है भी जिहड़ा स्क्वायर है उहदा ज़्यादा एरिया। उवें ही अ डोर ऑफ डायमेंशन, ये दरवाजा हैगा, ਇਹਦੀ डायमेंशन की है, दरवाजा देख लो रैक्टेंगुलर हैगा, ये हैगा 3 यानी लंबा वाला जिहड़ा हिस्सा है मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर। इनू एक दीवार दे विच फिट कीता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दीवार की जिहड़ी लंबाई हैगी है वो हैगी है 8 मीटर ते चौड़ाई हैगी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, ये वॉल नू पेंट करना है यानी एरिया अंदर वाला हिस्सा काटना है। इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज एन, देखो वॉल नू पेंट करना, दरवाजे नू पेंट नहीं करना, यानी पहला आपां दरवाजे दा एरिया जिहड़ा वो घटा लांगे वॉल दे एरिया चों, इन्ना हो सकदा है। दरवाजा भी रैक्टेंगल हैगा, वॉल भी रैक्टेंगल हैगी है, जे मैं दरवाजे दा एरिया कटदी हैगी आ तां मेरे कोल आ जांदा है, देखो इत्थे डोर दा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 मीटर है ना। वॉल दा कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ 8 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ कितनी है 5 मीटर, वो हो गया 40 मीटर स्क्वायर है ना। हुण ये पूरा दा पूरा 40 सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਾ ਦੇਣਾ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 34 मीटर स्क्वायर। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए 25 रुपए लगते हैं, 1 मीटर स्क्वायर के लिए जे 25 रुपए लगते हैं तो 34 लिए किन्ने लगणगे 25 ए बटा 1 मल्टीप्लाइड बाय 34, इनू मल्टीप्लाई कर दूंगी 19 रुपए आंसर आ जाऊगा। उवें ही फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एदा पेरीमीटर भी कढ़ना है ते एदी एरिया भी कढ़ना है, फिगर दिता होया सानू। चलो इनू मैं इत्थे करके 3 हिस्सों च वंड लिया, किवें ए उत्ते एक रैक्टेंगल थल्ले रैक्टेंगल ते विचकार मैं एक स्क्वायर टाइप का बना लिया, ठीक है, नाम दिता होया। हुण सानू ये पता है भी जिहड़ी ए बी साइड है वो बराबर हैगी है डी सी दे, इहदे बराबर हैगी है, यानी जे मैं थल्ले वाले दी गल करां तां ये हो गया 2 सेंटीमीटर ते ए वाला हिस्सा हैगा 9 सेंटीमीटर, इदां ही है ना, ये 9 हैगा, ये 2 हैगा, उत्ते वाला भी 9, ये भी 2, यानी ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏ ਬੀ ਇਹ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਏ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਏ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ प्लस ए वाली साइड ई एफ प्लस एफ सी, क्योंकि आप ए वाला हिस्सा काटना है कितना होएगा है कि नहीं। ਉਹਦੇ ਲਈ ए ਜਿਹੜਾ है 9 हो गया, ए भी ए 3 हैगा, इधरले पासे आ भी एफ सी भी 3 हैगा, ई एफ आ जाएगा साडे कोल, वो कट के आ गया साडे कोल 3 सेंटीमीटर, यानी ए भी 3 आ भी 3 ते आ भी 3। इन्नी गल सारे नूं समझ आ गई। हुण वी ऑब्टेन रैक्टेंगल, हुण साडे कोल 3 चीज़ां हो गईयां, एक ए रैक्टेंगल मैं पहला दसदा, एक ए वाला रैक्टेंगल ते एक विचकार जिहड़ा है वो स्क्वायर आ गया, ठीक है। हुण आपां कढना की है, इत्थे क्वेश्चन दे विच की कढण लई कहा गया, पहला कढण लई कहा गया पैरीमीटर, फिर कहा गया भी तुसीं इहदा एरिया भी कढ के दिखाओ। चलो पहला जे आपां एरिया दी गल करिए इहदे, तां ओहदे विच एरिया ऑफ रैक्टेंगल वो कढ लोगे जो कि हो गया 9 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ 2। रैक्टेंगल दा किवें होएगा 3, ए कढ लिया आपां मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो जे आपां उत्ते वाले दी गल करिए वो हो गया 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2, यही है ना लेंथ ते ब्रेथ। इन्हां सारियां नूं आपां ऐड कर दांगे ते 39 सेंटीमीटर स्क्वायर तुहाडे कोल एरिया आ गया। पैरीमीटर कढना कोई ज़्यादा औखा नहीं है। पैरीमीटर कढण लई आ जिहड़ी साइड्स दित्तियां होईयां इन्हां नूं नाम दे दिया करो, जिवें मैं अगे दिता है। तो ए साइड प्लस ए सारियां नूं ऐड कर दोगे
वापस इत्थे पहुंच जो, इत्थे शुरू करके 9 + 2 + 3 + 3 + a 1.5 + 2 + 6 + 2 इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ वापस पहुंच जो, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰੀਮੀਟਰ आ जाऊगा, पर आंसर सेंटीमीटर ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ क्योंकि ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ यूनिट है वो सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ईजी हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 11.1 ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਵਰਨਾ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ 28 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल यूनिट भी लिखने जरूरी है 15 सेंटीमीटर। जे नहीं लिखोगे यूनिट नंबर कट जाने। हुण लिखांगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 टाइम्स लेंथ कितनी है 28 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 15। इन्हां दोनों नूं ऐड कर दो 2 टाइम्स 43। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 43। ये आ गया जी 86 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लिखा, सेंटीमीटर लिखे। हुण आपां कढदे हां एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला की है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 28 मल्टीप्लाइड बाय 15। ये आ गया जी 420। यूनिट की है सेंटीमीटर स्क्वायर। जे ए नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाने। अगला ट्राई करते हैं। दूजे क्वेश्चन दे विच सानू लेंथ दी हुई है 9.4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हैगी है 2.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखांगे, फिर लिखांगे 9.4 प्लस 2.5। इन्हों ऐड किद्दां करना है, पॉइंट दे थले पॉइंट आएगा। 5 + 4 हो गया 9, 9 + 2 हो गया साढ़े कोल जी 11। ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 11.9। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 23.8 सेंटीमीटर। हुण आपां कढना है एरिया, वो आ गया 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। एरिया आ रहा साढ़े कोल 23.5। पिछे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगे चलते हैं, दूजा क्वेश्चन जिहड़ा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर जिहदी साइड दी हुई है। ਉਹੀ फॉर्मूला दोबारा लाना है आपां जिहड़ा आपां पहला पढ़िया सी। पहला लिखांगे साइड ऑफ स्क्वायर, वो कितनी दी हुई है 29 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो की है 4 टाइम्स साइड। 4 मल्टीप्लाइड बाय 29 116 सेंटीमीटर। ये यूनिट लिखना जरूरी है। उवें ही एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला की है साइड दा स्क्वायर 29 दा स्क्वायर। स्क्वायर यानी 2 बार गुणा होएगा। ये आ गया 841। यूनिट की आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उवें ही दूजा पार्ट, दूजे इक्वेशन विच जिहड़ी लेंथ या साइड दी हुई है वो हैगी 8.3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है 4 टाइम्स 8.3। इनू जब आप सॉल्व करांगे 8.3 नू मल्टीप्लाई करांगे आंसर आएगा 33.2 सेंटीमीटर। एरिया है 8.3 का स्क्वायर, वो आ गया 68.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। हुण आपां अगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं तीजा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इन्ना दिता हुआ है, एरिया कढना है। एरिया कढन लई लेंथ चाहिए या साइड चाहिए होएगी। चलो इत्थे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, वो कितना है 148 मीटर। हुण वैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला की हुंदा है, ये देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो हुंदा है 4 टाइम्स साइड। ठीक है, इत्थे मैं लिख दिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उत्ते जिहड़ा दिता होया 148 = 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। यही है
ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 148 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 37 यूनिट की हैगा मीटर ध्यान नाल यूनिट लिखियो हुण साइड आ गई एरिया तुसी कट सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क साइड दा स्क्वायर यानी 37 दा स्क्वायर ये आ गया 1369 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी अगे चलते हैं चौथा द एरिया ऑफ रैक्टेंगल इन्ना हैगा लेंथ हैगी है ब्रेथ ते पेरीमीटर कटना है मैं उम्मीद करती हूँ तुसी कट सकते हो एरिया ऑफ रैक्टेंगल 580 सेंटीमीटर स्क्वायर है यूनिट ध्यान नाल लेंथ ऑफ रैक्टेंगल वो कितनी हैगी है 29 सेंटीमीटर आपां सपोज करते हैं लेट breadth of rectangle equal to b centimeter breadth b ले लो area of rectangle दा formula की हैगा length multiplied by breadth area कितना है इत्थे 580 आ गया length कितनी है 29 breadth आपां b suppose कर ली ये डिवाइड हो जाएगा 580 divided by 29 equal to b यानी breadth जब डिवाइड करोगे ब्रेथ आ जाएगी 20 यूनिट की है सेंटीमीटर हुण कड्डण लई कहा गया सी पेरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल पेरीमीटर भी कड्डो हो गया 2 टाइम्स जे तुसी फॉर्मूला नहीं लिखोगे तां भी नंबर कट्टणगे लेंथ प्लस ब्रेथ यही है इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ कितनी है 29 प्लस 20 2 मल्टीप्लाइड बाय 49 98 सेंटीमीटर ये आ गई जी साडे कोल पेरीमीटर। आगे चलते हैं पंजवां क्वेश्चन अ वायर इज इन द शेप ऑफ रैक्टेंगल ये वायर जिहड़ी रैक्टेंगल दी शेप दे विच हैगी है लेंथ है 48 सेंटीमीटर ब्रेथ हैगी है 32 सेंटीमीटर इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर इनू मोड़ के स्क्वायर दी शेप दे दी गई what will be the measure of each side तो एदी जेडी साइड है वो कितनी होएगी also find which shape encloses more area किदी ज़्यादा एरिया हैगा ते कितना ज़्यादा आ लेस हैगी है वायर नू लेस समझ लिए भी एदा जेड़ा पेरीमीटर है वो स्क्वायर दे पेरीमीटर दे बराबर हो जाऊगा है ना जब स्क्वायर दा पेरीमीटर इक्वल टू लिखांगे तो साइड आ जाएगी साइड कट के दोनों दा एरिया कट लांगे फिर दस दांगे किदा वध है ते कितना वध है चलो इनू सॉल्व करते हैं इत्थे पंजवां लेंथ ऑफ रैक्टेंगल कितनी है 48 सेंटीमीटर ब्रेड्थ ऑफ रैक्टेंगल 32 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to 2 times length plus breadth is equal to 2 times length 48 plus 32 add करांगे इन्हां नू 2 times 80 160 सेंटीमीटर ठीक है हुण आपां ये जिहड़ा पेरीमीटर है स्क्वायर दे बराबर भी होएगा क्योंकि इसे नू बदल के स्क्वायर च मोड़िया गया सी आपां ले लैंदे हां लेट द साइड ऑफ स्क्वायर साइड जी हैगी है ए सेंटीमीटर ले लो कुछ भी ले लो एस ले लो ए ले लो ठीक है तो आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल ते स्क्वायर दा पेरीमीटर बराबर है हुण पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपां कितना कड्ढिया 160 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दा फॉर्मूला की है 4 टाइम्स साइड ए कड्ढण लई ए 4 डिवाइड हो जाऊगा 160 डिवाइडेड बाय 4 ए आ गया जी 40 यूनिट की आएंगे सेंटीमीटर हुण साडे कोल साइड आ गई स्क्वायर दी ओ कितनी है
40, दूजी भी 40 होएगी, सारी साइड्स बराबर ही होंगी। हुण आपां एरिया कढना है। एरिया ऑफ स्क्वायर वो हुंदा साइड दा स्क्वायर यानी 40 दा स्क्वायर यानी 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 1600 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है। उवें ही असी कढना हैगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो आ गया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, लेंथ सी 48 ब्रेड्थ सी 32 मल्टीप्लाई किया 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किदा एरिया ज्यादा है लिखना स्क्वायर दा, स्क्वायर encloses more area by कितना ज्यादा है 1600 जो माइनस कर दो 1536 64 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी इन्ना वध है उसका एरिया। आगे चलते हैं 6वां क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज सेम ऑफ दैट अ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी एदा अंदरला जेड़ा एरिया वो बराबर है ਇਹਦੇ। इदा करके जे बना लूंगी तो सॉल्व करना सौखा हो जाऊगा। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ साइड हैगी है वो हैगी है 75 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 125 मीटर, फाइंड द ब्रेड्थ ए कढनी है, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ते ਇਹਦਾ पेरीमीटर भी कढना है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ सॉल्व करन दा तरीका की है, देखो दोनों का एरिया बराबर है, जो ਇਹਦਾ एरिया होएगा तुसी कढ सकते हो स्क्वायर का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ब्रेड्थ आ जाऊगी, ब्रेड्थ आ गई एक बार तुसी पेरीमीटर कट सकते हो रेक्टेंगल का। इनू सॉल्व करते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क वो कितनी हैगी है 75, यूनिट की हैगा ध्यान नाल मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क वो कितना हो गया 75 का स्क्वायर, 75 मल्टीप्लाइड बाय 75 5625 मीटर स्क्वायर। जे नहीं लिखोगे नंबर कट जाने। आगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ कितनी है 125 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेड्थ सानू पता नहीं है आप ले लेंगे बी मीटर। एरिया का की फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, फॉर्मूला हुंदा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 125 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ बी है, मीटर स्क्वायर दे विच आएगा। पर क्वेश्चन विच दिता होया है एरिया ऑफ जिहड़ा रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हैगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, दोनों का एरिया जिहड़ा हैगा बराबर हैगा, यानी ये बराबर हैगा एदे 125 मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू 5625। बी कट लांगे डिवाइड करके, डिवाइड कर देंगे 125 नाल, ये आ गया 45 मीटर। हुण आपां कढ ली ब्रेड्थ, हुण की कढना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। वो तो सिंपल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क यूनिट लिखने ध्यान नाल हैगे ने। ये फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ हो गया 125 प्लस 45, सॉल्व किया 340 मीटर आंसर। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल ਕੀਤਾ ਸੀ। अ डोर ऑफ लेंथ इन्ना, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लेंथ हैगी है ये हैगी है 2.5 मीटर ਤੇ ब्रेड्थ हैगी है 1.5 मीटर। इस फिटेड इन अ वॉल, ਇਹਨੂੰ वॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। वॉल ਦੀ ਜਿਹੜੀ लेंथ हैगी है 9 मीटर, ब्रेड्थ हैगी है 6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इन्नी दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर की इन्नी कॉस्ट है, यानी पहला आप वॉल कढ़नी है, दरवाजे नू बाहर हटाना है। दरवाजे का एरिया कढ़ लो, वॉल का कढ़ लो, तो फिर उन्होंने माइनस कर दो। चलो पहला दरवाजे का कढ़ते हैं। लेंथ ऑफ डोर 2.5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ डोर
1.5 मीटर, एरिया ऑफ डोर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 3.75 मीटर स्क्वायर। उवें ही लेंथ ऑफ वॉल 9 मीटर, breadth of wall 6 मीटर, area of wall length multiplied by breadth 9 multiplied by 6 ये आ गया 54 मीटर स्क्वायर। इन्ना ही आएगा। हुन वॉल दे विचों दरवाजा हटाना है, माइनस कर दईए। एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड जिन्हों आप पेंट करना है वो किवें कड्डांगे, एरिया पूरा दा पूरा एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, दरवाजे ਨੂੰ माइनस कर दांगे, जिन्ना पूरा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दरवाजा माइनस कर दो। 54 माइनस 3.75 मीटर स्क्वायर माइनस किवें करना है 54.0 माइनस 3.75 ये 10 बन जाऊगा, ये 9 ये बन जाऊगा 3। इनू सॉल्व करोगे इदा आऊगा, डेसिमल दे थल्ले डेसिमल आना जरूरी है। इन्ने मीटर स्क्वायर आ गया। हुण सानू क्वेश्चन दे विच दिता गया सी कॉस्ट ऑफ, चेक कर लो, पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल। 1 मीटर स्क्वायर नू पेंट करन दी कॉस्ट हैगी 30 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एने मीटर स्क्वायर 50.25 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल कितना हो जाऊगा 30 बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 50.25 ये आ गया रुपीज़, मल्टीप्लाई करोगे 1507.50 ये आ गया जी साडे कोल आंसर। अगे चलते हैं 8th क्वेश्चन। अ डोर ऑफ डायमेंशन एने एने, अच्छा एक दरवाजा हैगा ए हैगा 3 इत्थे हैगा 2, एक विंडो हैगी है जिहदी डायमेंशन हैगी है 2.5 ते 1.5, इन्हां दोनों नूं एक दीवार दे विच फिट किया गया। ठीक है, लेंथ ऑफ द वॉल जिहड़ी हैगी है लंबाई हैगी है ए हैगी है 7.8 मीटर ते ब्रेड्थ हैगी है 3.9 मीटर। वॉल नूं फिर पेंट करना है, यानी पूरी वॉल दा एरिया कट के उहदे विचों डोर दा ते विंडो दा माइनस कर देंगे जिवें उत्ते कीता सी। सॉल्व करते हैं। देखो सब तो पहला मैं इत्थे लिख रही हाँ लेंथ ऑफ डोर वो कितनी है 3 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ डोर 2 मीटर, एरिया ऑफ डोर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 6 मीटर स्क्वायर। उवें ही लेंथ ऑफ विंडो 2.5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ विंडो 1.5 मीटर, एरिया ऑफ विंडो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ये आ गया जी 3.75 मीटर स्क्वायर। इन्हां दोनों नूं आपां यूज करना है। हुण आपां गल करदे हां लेंथ ऑफ, एक एक चीज लिखनी है। वॉल 7.8 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ वॉल ये हैगी है जी 3.9 मीटर, एरिया ऑफ वॉल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड 7.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.9 ये आ गया 30.42 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पूरी दीवार का एरिया ये हैगा, इहदे विचों दरवाजे ते खिड़की का आपां माइनस कर देना ते आपां लिखांगे जिहड़ी वॉल नूं आपां पेंट करना तां ही कड्ढी जाएगी ना, ते इत्थे लिख दिंदे आ एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड जिते आपां पेंटिंग करनी है इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर दरवाजा का एरिया माइनस एरिया ऑफ विंडो। वॉल कितनी है 30.42 माइनस करना है उहदे विचों एक 6 माइनस करना है 3.75
-3.75 -6 -3.75 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ 30.42 माइनस 6.00 आएगा याद रखियो ठीक है बेटा ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ 24.42 ਮਾਈਨਸ 3.75 ਹੁਣ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ 12 ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 13 ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 गए 7 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗਏ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6 3 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗਏ 0 2 ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ 20.67 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ cost of painting 1 meter square is equal to ₹25 the cost of painting enna 20.67 meter square multiply कर देंगे 25 multiplied by 20.67 ये आ गया जी साडे कोल ₹516.75 ये आ गया आंसर आगे ट्राई करते हैं 9th क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਿਗਰਸ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ A B C D E F G H ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ H ਤੋਂ ਬਾਅਦ I ਇੱਕ A ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ J ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਦ ਫਿਗਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ AB A ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਲੱਸ BC plus CD plus DE plus A वाली EF plus FG A वाली plus GH plus A वाली साइड HA है ना यही आएगा ना हुण इन्हां सारियां नूं ऐड कर दो 10 plus A हैगी है A वाली साइड 3.5 plus 5 plus 2 plus 3 plus 3.5 plus 2 plus 9 यही हैगा ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 38 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਏਰੀਆ ਆਫ किदा एरिया ऐड करोगे एरिया ऑफ ABCI एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCI प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEJI एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEJI ते तीजा एरिया ऑफ रेक्टेंगल JFGH area of rectangle JFGH यही आएगा ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ A ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ 10 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 3.5 ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ A ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 10 ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ A ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਹੈ तो ए भी 5 हो जाऊगा है ना क्योंकि टोटल 10 है हिस्सा 5 है कितना रह गया 5 क्योंकि एक और रेक्टेंगल दी साइड सी तो ए आ गया जी 5 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ कितनी है 2 प्लस अगे चलते हैं इत्थे देखिए तो इन्ना हिस्सा ए पूरा 5 हैगा जे ए दी गल करिए आपां ए कटना है इन्ना 3 है तो ए कितना हो जाऊगा 2 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 है ना इनू सॉल्व करते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 हो गया 35 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 10
प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 7। इन्हां नूं ऐड कर दोगे 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है वो आंसर आ जाऊगा। उवें ही ए वाला ट्राई करके देखते हैं हुण आपां। जिवें मैं इस फिगर विच नेम दिते सी उवें ही तुसीं इत्थे भी नेमिंग करनी है, ए बी सी, क्योंकि इनू हिस्से विच वंडांगे ना इदां करके, डी ई एफ, ए आ गया ए वाला जी, इत्थे आ गया एच आई जे के एल एम, ये नाम हो गए सारे दे सारे। हुण एक तां ये तरीका है भी इनू 1 2 3 4 भागां विच डिवाइड कर दो, ठीक है। दूजा तरीका भी दसदी हां जिहदे विच इहदे विच 3 रैक्टेंगल आउणगे। आ देखो इत्थों लैके इनू बंद कर दो, इत्थों लैके इत्थे तक एक बना दो, 1 2 3। हुण नेम कर दिए ए बी सी डी ई, ए आ गया एफ जी एच आई जे, ए आ गया के, ठीक है। हुण आपां सब तो पहला इहदा पेरीमीटर कढ लैंदे हां। पेरीमीटर कढण लई आपां लिखांगे पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस ए वाली साइड बी सी। ये डायग्राम तुसी कॉपी च बनाना है, प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ ए वाला प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे ए। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड कर ਦਿੰਦੇ हैं। ए बी तो शुरू करते हैं 1.5 प्लस अगे ए वाली जिहड़ी साइड हैगी है ए हैगी है 2.5 प्लस ए साइड कितनी होएगी जिन्नी ए वाली है उत्ते 1.5 प्लस ए हैगी है 1.5, फिर ए वाली 1.5 प्लस ए वाली आ गई 2.5 प्लस ए वाली साइड किवें कड्डांगे, देखो उत्ते वाली 5 हैगी है पूरी दी पूरी, ये थले भी 5 ही होएगी, ते 5 विचों पहला ए वाला हिस्सा घटा दिए 1.5 ए वाला, ए 1.5, फिर जे ए घटा दांगे 1.5 ते साडे कोल 5 माइनस 1.5, ए बन गया 10, ए बन गया 4, 3.5 रह गया ए वाला हिस्सा, ते इत्थे लिख लेंदे आ प्लस 3.5, ए हैगी है 1.5 उत्ते 5 ते ए वाली साइड आ गई साडे कोल 8। इन्हां सारियां नूं जद तुसीं ऐड करोगे आंसर आ जाएगा साडे कोल 29 सेंटीमीटर पेरीमीटर। हुण कढदे हां एरिया, वो किवें आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी जी के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी जी के प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के एच आई जे प्लस ए आ गया इत्थे एक स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर सी डी ई एफ, ऐड कर दिंदे हां हुण सारिਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ए आ गया साडे कोल 1.5, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1.5 ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 2.5 प्लस ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ 1.5 प्लस ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ 2.5, 5 1 ਉੱਤੇ ਗਿਆ 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 5 6, ये आ गया 6.5 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए वाला ले लेंगे हैं, ए आ गया साडे कोल 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस ए स्क्वायर दा कटदे हैं 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। इन्हां नूं जद आपां सॉल्व करांगे मैं दस दिंदी हां की आंसर आएगा। सब तो पहला आपां हल करांगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 वो हो जाएगा जी तुहाडे कोल इत्थे लिख दिंदी हां 9.75। फिर आपां मल्टीप्लाई करांगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 वो हो गया जी तुहाडे कोल 7.5। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ये आ गया 2.25।
जद इन्हां सारियां नूं तुसीं ऐड कर दोगे यानी 9.25 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 7.50 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 2.25 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 19.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਏਰੀਆ ऑफ रैक्टेंगल की होएगा जब सानू लेंथ ते ब्रेड्थ दी गई। इन्हां दोनों नू मल्टीप्लाई कर दांगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दे विच एरिया आ जाऊगा। उवें ही ब्रेड्थ ऑफ रैक्टेंगल हुज लेंथ इज एना ते पेरीमीटर एन है। इत्थे फार्मूला लिखना रैक्टेंगल दा पेरीमीटर की हुंदा है, पेरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर है 36 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ भी सानू इत्थे 12 दिती हुई है। इनू डिवाइड करना 36 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12 प्लस ब्रेड्थ यही होएगा। 36 नू डिवाइड करदे आ जब 2 दे नाल ए आ गया 18, 12 इत्थे चला जाएगा माइनस 18 माइनस 12 करांगे आंसर आ जाएगा जी 6। ए आ गई ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर। उवें ही थर्ड पार्ट इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज एना एरिया कितना है। एरिया की हुंदा है साइड दा स्क्वायर। एक साइड 1 मीटर हैगी है 1 दा स्क्वायर 1 ही होएगा 1 पर पीछे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये याद रखियो। ठीक है, हुण इत्थे आंसर ये आना चाहिए बट ऑप्शन से विच ये नहीं दिता होया ते क्वेश्चन गलत हैगा। इत्थे दिता होया भी एक साइड जिहड़ी है जे तुसी 100 लैके चलो ठीक है तो आंसर बनता है तो क्वेश्चन गलत है। तो जे 100 लैके चलिए 100 का स्क्वायर की हो जाऊगा 10,000 यूनिट की आऊगा। इतने सेंटीमीटर दिता होया इतने 100 सेंटीमीटर आएगा तो ये गलत है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेंज करना पैना ताही आंसर आऊगा। अगला फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर दिता होया 96 सेंटीमीटर। चलो मैं इत्थे सॉल्व कर दी। पेरीमीटर की हुंदा है 4 टाइम्स साइड 96 इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइड। साइड आपां इहदे विचों हुण कढ सकदे हां 96 नूं डिवाइड करके 96 डिवाइडेड बाय 4। जे आपां 96 नूं डिवाइड करदे हां 4 दे नाल आंसर आ जांदा है साइड साडे कोल 24। हुण आपां कढना है एरिया। वो हो गया साइड दा स्क्वायर यानी 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 यही आएगा ना। 24 नू 2 बार मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया जी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। आगे कहा गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट एनी है। एरिया दा फार्मूला की हुंदा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया दिता होया 500 लेंथ दी हुई है 25 ब्रेड्थ काटनी है उहदे लई एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ कर दांगे। जे तुसी डिवाइड करोगे इनू तां तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा ब्रेड्थ दा 20 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। व्हाट हैपन्स टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स साइड इज डबल्ड। यानी पहला मान लो थोड़े कोल एस सी साइड हुण ओदा जेडी साइड होगी वो होगी 2s। फिर आपां एरिया कट दिंदे आ। पहला कितना सी साइड दा स्क्वायर हुण न्यू वाला जेड़ा एरिया है वो की हो जाएगा 2s दा स्क्वायर यानी 4 टाइम्स साइड दा स्क्वायर 4 बार हो जाएगा। ये आ गया आंसर क्योंकि डबल होगी ना साइड तो 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर दा एरिया ए सी सेम वो 4 बार हो गया। तो ये सी अज की क्लास में उम्मीद करदी हां तुहानू एक्सरसाइज समझ आ गई होएगी। जे वीडियो वधिया लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। आपां अगली क्लास में फिर मिलांगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।